Yes, today's first class is Chapter 1, Computer System. This is from your NCERT book. Introduction to Computer System. Now, what is a computer? A computer is an electronic device that can be programmed to accept data, process it, and generate result or output. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको प्रोग्राम किया गया है डेटा इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग जो भी काम हो रहा है प्रोसेसिंग के लिए, and generate output or result. Now, what is the difference between electronic and electrical device? Anybody switch on your mic and try to give the answer. You are trying it. Here. Yes. Electronic device का मतलब क्या होता है? What is an electronic device? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो तुमने देखे होंगे, टीवी, your remote, so many electronic devices you are using. Now in these electronic devices we are using all the electronic components. You will see when you will open the computer or laptop or your mobile, you will see there is a motherboard. On that all the chips, transistors, all the electronic devices are present. Electrical devices works on all the electrical devices or electrical components where we use 230 volt supply and then directly we can give the supply to the electrical devices. But in electronic device we require very less voltage. So we have to step down and then we have to use in our electronic devices. Next, a computer along with additional hardware and software together is called a computer device. Now, what is hardware and what is software? Hardware are the tangible parts of computers which you can touch and see, whereas software are the intangible programs of computers which you can only see, you cannot touch the parts. So, softwares are the programs or the instructions which are intangible, and hardware are the tangible parts of computers. Now, what are the example of hardware and software? Which CPU, you mouse, keyboard, CPU, monitor. monitor. very good. Clear. So all the parts which you can touch, your monitor, CPU, input device, all the keyboard, mouse, output device, your screen, your speaker, even the cables. So all these are your hardwares. And softwares? Python programming, C++, Java, Very and good. Vita video creator, etc. Very Even the good. applications also. All the applications also, even all the operating system also, Windows, Linux, Unix, all the operating system, all the programming languages like Python, Java, C++, all the applications, Word, Excel, PowerPoint, so all are softwares. Now, a computer system primarily comprises a central processing unit, CPU, memory, input output devices, and storage devices. So, all these makes a computer. Now, individually we will do one by one. What is a CPU, what is a memory, what is input device, what is output device, and what are storage devices. All these components function together as a single unit to deliver the desired output. A computer system comes in various forms and sizes. It can vary from a high-end server to personal desktop, laptop, tablet computer or a smartphone. अलग अलग डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है. मार्केट में जाओगे तो डेस्कटॉप के फॉर्म में या फिर लैपटॉप के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में या स्मार्टफोन के फॉर्म में कंप्यूटर्स अलग अलग साइजेस एंड शेप्स, उनकी काम का जो स्पीड, काम का तरीका है वो भी अलग अलग, सारे डिवाइसेस के अलग अलग है ऑलमोस्ट. कोई फास्ट चलता है, किसी का रैम ज़्यादा है, किसी का जनरेशन अलग है. क्लियर. So all are having different microprocessors, and you will see that all the devices have different
sets of functioning. Like suppose you will see that some are working faster, some are working slower, some are using Android, smartphones are using Android operating system, laptops, maybe your desktop are using Windows operating system. So it differs from system to system. Now figure shows the block diagram of a computer system. The directed lines represent the flow of data and signal between the components. तो ये जो lines है ये data को represent कर रहा है कि information और data, पहले input device से हम data देंगे और फिर ये CPU है जिसके 3 parts है, primary memory, control unit and arithmetic and logic unit. हर एक का काम अलग अलग है. जब पढ़ोगे ध्यान से ALU क्या काम कर रहा है, नाम से ही समझ में आ जा रहा है. एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स सारे एरिथमेटिकल मैथमेटिकल फंक्शनिंग और लॉजिकल फंक्शनिंग इसमें होता है. सीयू का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट पूरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को काम को कंट्रोल करता है. सीयू. प्राइमरी मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी रोम रैम जो होता है वो टेम्परेरीली काम को या जो भी हम स्टोर डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस परमानेंटली स्टोर करने के काम आता है और आउटपुट डिवाइस हमको आउटपुट डिस्प्ले करने के काम आता है. तो अभी अगर मैं पूछूं कि इनपुट डिवाइसेस के अगर तुमको 10 या 5 एग्जांपल्स बोलने हैं तो क्या क्या बोलोगे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स? which takes input from the user. Already you are using your keyboard, mouse, touch screen, मॉनिटर. मॉनिटर में हम आउटपुट मॉनिटर भी देखो, मॉनिटर 2 तरीके से है. अगर मॉनिटर को हम टच करके वो कर रहे हैं, टच स्क्रीन है तो फिर वो इनपुट में आएगा. लेकिन अगर वो टच स्क्रीन नहीं है, खाली आउटपुट दिखा रहा है तो फिर वो आउटपुट में आएगा. ठीक है. तो खाली इनपुट के लिए कौन कौन से है? कीबोर्ड, हाँ अभी माइक्रोफोन, माउस, माइक्रोफोन और माइक हो गया, स्कैनर होगा, हाँ स्कैनर होगा, हाँ सीपीयू होगा. सीपीयू नहीं, सीपीयू खाली प्रोसेसिंग के लिए है, सीपीयू नहीं होगा. ठीक है. सीपीयू खाली प्रोसेसिंग के लिए जिसमें हम खाली इनपुट देते हैं. जैसे तुम मॉल्स में जाते हो तो मॉल्स में बार कोड रीडर होता है जिससे वो इनपुट लेता है. ठीक है. प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है, नंबर है, वो स्कैन करके लेता है. वैसे ही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसमें इनपुट डिवाइसेस में कुछ इनपुट डिवाइसेस देखती हूँ. कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, माइक्रोफोन दिख रहा है. 3 इनपुट डिवाइसेस इसमें दिख रहे हैं. तुम इसमें अगर गूगल सर्च भी करोगे तो इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स, हाँ अब इसमें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं. गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक यूज कर रहे हो, कीबोर्ड माउस से इनपुट दे रहे हो, वेब कैमरा से तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीडियोस कैप्चर कर सकते हो, ट्रैकर बॉल, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, स्कैनर. तो ये तो कॉमन वाले हो गए हैं, कॉमन इनपुट डिवाइसेस जितने हैं. जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए. अब ये देखो बार कोड रीडर, ये सारे आजकल मॉल, स्पेंसर, बिग बाजार सब जगह बार कोड रीडर दिखेगा तुमको. OCR, OMR, अभी जैसे एग्जाम होने वाला है टर्म 1 CBSE का, तो उसमें OMR शीट बच्चों को दिया जाएगा जिसमें तुमको या तो सर्कल्स फिल करने हैं. नॉर्मली उसमें सर्कल्स रहते हैं, ABCD ऑप्शन रहता है, तो उसको OMR शीट बोलते हैं और वो स्कैन करके चेक होता है. ठीक है. ऐसे ही OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, रिकॉग्नाइजर्स होते हैं. तो इसमें कैरेक्टर्स, स्पेशल इंक से कैरेक्टर्स रहते हैं. टच पैनल, टच पैड, MICR, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये ज़्यादातर हमारे चेक बुक्स में, ड्राफ्ट्स में, इसमें नीचे मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है. किसी कभी अगर बैंक के डॉक्यूमेंट्स को देखोगे, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट देखोगे या पासबुक देखोगे, उसमें सब जगह मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यूज होता है.
तो इसमें एक एक करके इसको अगर डिटेल में देखना है तो एक एक करके डिवाइसेस जो है इसके पिक्चर्स को इसके बारे में तुम एक एक करके देख लेना। बाकी डिटेल में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक से ही करेंगे। चलो अब आउटपुट डिवाइसेस बता दो कुछ। मैम मॉनिटर, वेरी गुड। मैम मॉनिटर, स्पीकर, मैम स्पीकर, प्रिंटर, प्रिंटर, वेरी गुड। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, वेरी गुड। और मैम हेडफोन्स होगा। मैम स्पीकर, हाँ हेडफोन्स होगा, स्पीकर होगा, ठीक है। जिससे भी साउंड आ रहा है, साउंड सुन रहे हो तुम, तो वो साउंड उससे बाहर आ रहा है तो वो सारे आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे। इवन और जो देख रहे हो तुम स्क्रीन पे मॉनिटर रहेगा तुम्हारा, फिर स्पीकर, प्लॉटर, प्लॉटिंग करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या कोई भी पिक्चर्स या कोई भी बिल्डिंग आर्किटेक्चरल वर्क के लिए हम प्लॉटर यूज करते हैं। प्रिंटर्स, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जो भी आउटपुट दे रहा है तुमको वो सारे आउटपुट डिवाइसेस, और जो इनपुट ले रहा है वो सारे इनपुट डिवाइसेस। सीपीयू जो है ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेस कर रहा है, काम कर रहा है। इनपुट डिवाइस से इनपुट ले रहा है, उसको प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन बना के आउटपुट डिवाइस में दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सीपीयू हो गए। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग and usually referred as the brain of the computer. It is commonly called processor also. Physically, a CPU can be placed on one or more microchips called IC or integrated circuits. The ICs comprise semiconductor materials. तो ये पूरे chips So inside CPU you are having many chips and it is the brain of your computer. The different parts of CPU are ALU, CU, और नाम से समझ में आ रहा है। ALU अरिथमेटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल कामों के लिए होता है। CU सबको कंट्रोल करता है, पूरे इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट आउटपुट को, पूरे काम को कंट्रोल करता है, ठीक है। और MU क्या करता है, मेमोरी यूनिट की तरह यूज होगा। तो CPU को कर लेते हैं। The CPU is given instructions and data through programs. The CPU then fetches the programs and data from the memory and performs arithmetic and logic operations as per the given instructions and stores the result back to the memory. So whatever it is processing, it will store the result to the back to the memory. While processing, the CPU stores the data as well as instructions in its local memory called registers. Registers are part of the CPU chip and they are limited in size and number. Different registers are used for storing data, instructions and intermediate results. ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है या रजिस्टर होता है, इसमें लिमिटेशन होता है। जैसे तुमको अगर अनलिमिटेड डेटा स्टोर करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, ताकि हम उसमें अनलिमिटेड, मतलब एक पेन ड्राइव अगर फुल हो गया तो सेकेंड पेन ड्राइव में डाल दिए, एक मेमोरी कार्ड अगर फुल हो गया तो सेकेंड मेमोरी कार्ड में डाल लिए, ठीक है। Other than the registers, the CPU has two main components, ALU and CU, ठीक है। रजिस्टर्स एक मेमोरी की तरह स्टोर कर रहा है, लेकिन उसमें लिमिटेशंस होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेशंस होते हैं। उसके अलावा सीपीयू के और दो पार्ट कौन कौन से, एएलयू है, सीयू है। कहीं कहीं पे रजिस्टर को एमयू लिखा गया है या फिर कैश मेमोरी करके, तो रजिस्टर्स ही हम लिखेंगे उसमें। अब ALU performs all the arithmetic and logic operations that need to be done as per the instruction in the program. CU controls sequential instruction execution, interprets instructions and guides data flow through the computer's memory. ALU and input और output devices. तो जो भी काम हो रहा है, चाहे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं या डेटा फ्लो हो रहा है, ये इन डिवाइसों में, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, CPU कंट्रोल कर रहा है।
और ALU क्या कर रहा है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस जो ज़रूरत है वो कर रहा है। CPU is also popularly known as microprocessor. CPU के अंदर एक माइक्रोप्रोसेसर होता है जिससे उस कंप्यूटर का नाम, सपोज नॉर्मली हम लोग क्या पूछते हैं मार्केट में जब खरीदने जाते हैं कि कौन सा कंप्यूटर है, तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा, i5 है, i7 है, i3 है, मतलब वो माइक्रोप्रोसेसर का नाम बोल रहा है। उसी से हमको समझ में आ जाता है कि वो कैसे, उसका फंक्शनिंग कैसे हो। जो पुराने माइक्रोप्रोसेसर्स होते थे वो स्लो होते थे, और जो न्यू माइक्रोप्रोसेसर्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिसका रैम ज़्यादा है, वो सब फास्ट होंगे। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस, ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले तुमने इनपुट डिवाइसेस के पिक्चर्स यहाँ देख लिए हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, 4 पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी तुमको टच स्क्रीन ऑलरेडी पता है, स्कैनर देखे हुए हो। अब इसमें तुम माइक्रोफोन, माइक को ऐड कर सकते हो। अगर एग्जाम में 5 आ गया कि 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखो, तो यहाँ से देख के तुम 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम इसमें एग्जाम्पल में दिए होंगे, तुम उसमें से देख के लिख लेना। ठीक है, The devices through which control signals are sent to a computer are termed as input devices. These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system. Some examples of input devices include keyboard, mouse, scanner, touchscreen, etc. as shown in figure 1.2. जो ऊपर फिगर था उसमें डिस्प्ले हुआ है। Specially designed braille keyboards are also available to help the, ये पिछले बार एग्जाम में आया था। Dash keyboards are also available to help the visually impaired for entering data into a computer. ठीक है, तो लास्ट ईयर ये फिल इन द ब्लैंक्स से 1 वर्ड में आया था। तो इसमें ब्रेल कीबोर्ड जो होता है उसमें जिनको दिखाई नहीं देता है तो वो ब्रेल कीबोर्ड से उन लोग टाइप करते हैं। Besides, we can now enter data through voice. आजकल हम बोल के भी टाइप कर सकते हैं वॉइस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, we can use Google Voice Search to search the web, where we can input the search string through our voice. मोबाइल में हम लोग ओके गूगल बोल के हम बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन बोलते हैं तो वो गूगल हमको उसका साइट या फिर जो भी आंसर है वो दिखा देता है। Data entered through input device is temporarily stored in the main memory, also called RAM, of the computer system. For permanent storage and future use, the data as well as the instructions are stored permanently in additional storage location called secondary memory. Permanently store करने के लिए हम secondary memory use करेंगे, और टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए हम रैम या फिर मेन मेमोरी यूज करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, या फिर डिफरेंस बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी में जो रैम है वो वोलेटाइल है, टेम्परेरीली काम करने के लिए हम यूज करते हैं, और परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंसेस हम लोग बाद में नोट्स में लिख लेंगे। आज तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है तो थोड़ा बुक का देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे आउटपुट डिवाइसेस। ऑलरेडी आउटपुट डिवाइसेस तुम बोल चुके हो, डिस्प्ले, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर्स, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, physical production, etc. is called output device. It converts digital information into human understandable form. For example, monitor, projector, headphone, speaker, printer, etc. Some output devices are shown in figure. A braille display monitor is useful for a visually challenged person to understand the textual output generated by the computer. ठीक है, तो जिनको विजुअली प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम है, उनके लिए ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर है, जिसको उन लोग टच करके क्या टेक्सचुअल आउटपुट है वो उन लोग देख सकते हैं। अब प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमन। हाँ बोलो। हम चार्जर आउटपुट पे आएगा कि इनपुट पे आएगा? चार्ज लेकर वहां से चार्जर दोनों काम कर रहा है। इसमें कुछ डिवाइसेस दे आर फंक्शनिंग एज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट। जैसे कि तुम्हारा हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, चार्जर है। चार्जर क्या कर रहा है कि
कहीं से पावर लेके तुम्हारे डिवाइस को पावर दे रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग कर रहा है, तो वो दोनों काम कर रहा है, इनपुट भी ले रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। ऐसे ही हमारे पेन ड्राइव जो है जिसमें हम स्टोर करेंगे, प्लस पेन ड्राइव, फिर हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ये सारे क्या काम कर रहे हैं, दोनों। मीन्स इसमें हम देखो यहाँ एक डायग्राम में दिया हुआ था, ये देखो नीचे जो दिया है ये दोनों काम कर रहा है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट का काम कर रहा है, चाहे वो सीडी हो चाहे वो हार्ड डिस्क हो। तो इसमें हम इनपुट भी दे रहे हैं और इससे हम रीड भी कर, आउटपुट भी इसमें से इंफॉर्मेशन को पढ़ भी रहे हैं। तो ये सारे इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों में आ जाएगा, ठीक है। A printer is the most commonly used device to get output in physical hard copy form. देखो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मीन्स जब मैं बोलूँगी कि कॉपी का सॉफ्ट कॉपी जमा करो तो जस्ट उसको स्कैन करके उसका पीडीएफ या डॉक तुम लोग भेज दोगे, और हार्ड कॉपी जब जमा करने बोलेंगे तब तुमको कॉपी लेके स्कूल में आके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल हार्ड कॉपी जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तब फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म में प्रिंटिंग होता है। 3 types of commonly used printers are inkjet, laser and dot matrix. Nowadays there is a new type of printer called 3D printer. स्कूल में देखे हो 3D printer रखा हुआ है ATL लैब में, जिसमें पूरे एक एक शेप्स मीन्स एक एक ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट्स हम उसमें प्रिंट निकाल सकते हैं, which is used to build physical replica of a digital 3D design. इसका मैं एक दिन वीडियो दिखा दूंगी, हमारे स्कूल का जो 3D वाला है उसका एक दिन वीडियो दिखा दूंगी। These printers are being used in manufacturing industries to create prototypes of products. किसी भी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना है हम 3D प्रिंटर से बना सकते हैं। Their usage is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs. जहाँ पे आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन्स लगाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ, कैसे स्लोली पहले मैकेनिकल होता था, फिर इलेक्ट्रिकल हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, फिर अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स लगे, फर्स्ट जनरेशन आया, सेकेंड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन आया। तो ये पूरा उसका हिस्ट्री दिया हुआ है। आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सबके घर में ऑटोमेटिक डिवाइसेस है जो मोबाइल से कनेक्टेड है। सपोज कार को तो मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी को तो मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हो, तो ये आईओटी डिवाइसेस है सारे। अब इसमें कंप्यूटर मेमोरी क्या है, तो ये टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये जो मेमोरी यूनिट्स है ये एग्जाम में आता है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कर लोगे। ये मेमोरी इनपुट यूनिट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो ये जो हम स्टोर करते हैं तो उसके यूनिट्स, उसको डिटेल में हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर्स दिए हुए हैं। ऑलरेडी मैंने इस बुक का सॉफ्ट कॉपी शेयर किया है, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं।